ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ, UK, ਯੂਰਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਟਸ TV ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ तो पहले की तरह फीडबैक भी जरूर करोगे। ये जो लोटस TV है ये कांशी TV तो प्रकाशित किया जाता है, जिस दिन तुसी स्काई 765 एवरी संडे शाम ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 देख सकते हो लाइव। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਂਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੈਂਸਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ स्काई 765 ਤੇ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर तुसी इस लॉग ऑन करना है तन पीमा तन ते जाके तुसी सारे प्रोग्राम साढ़े देख सकते हो। अज का यह प्रोग्राम जो है क्योंकि ये स्पॉन्सर प्रोग्राम है, क्योंकि अज साढ़े बहुत ही मानयोग सत्कारयोग बजुर्ग साढ़े संत राम जी नूं डेडिकेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार ने ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਟਸ TV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸੁਮੇਧ ਜੀ। ਸੁਮੇਧ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सो मच कोल जी। थैंक यू लोटस TV और अंबेडकर मेमोरियल ग्रेट ब्रिटेन, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस शो। और हमारे लेट अम्बेडकरीवादी मिशन के कार्यकर्ता संतराम जी, उनको हार्टफेल कंडोलेंसेस उनकी फैमिली को, और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ मैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह असी अज का प्रोग्राम श्री संत राम जी ਨੂੰ ਲੇਟ श्री संत राम जी ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 5 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕਰੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਮਲਿੰਦ, ਆਨੰਦ, ਰਕੇਸ਼ ਕਰੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੋਟਰ ਰੀਮਾ ਕਰੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਮਿਸਿਸ ਚੰਦਰ ਗੇਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੀ ਜਗਨੰਦਨ ਗੇਰਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਮਿਸਿਸ ਅੰਜੂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹਨ, ਸੁਜਾਤਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਬਰਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 21/3/31 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ UK ਵਿੱਚ 1963 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਫੋਰਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ABC ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਓਵਰ ਰੋਡ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਧੰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਧੰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਟਸ TV ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਬਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਪੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਪੌਲ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1897 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਰਤੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਸੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸਮਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਡੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਛਾ ਗਈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਛਾ ਗਈ। ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਗਈ। ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਦੰਗ ਸਾਰੇ
ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਈਰਖਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਛਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਛਾ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜਦ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੂੜਾ ਰਹੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਰੋਕਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਰਹੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਗਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ याद तेरी आ गई सावित्री बाई फुले याद तेरी आ गई देश दी सी पहली नारी टीचरां च थां है फुले फैमिली दा तुसां ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੈ ਪੁੱਜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤੂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਗਈ ਪੁੱਜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤੂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਛਾ ਗਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਛਾ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆ ਗਏ ਟੀਚਰਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ तो खुशी एक छा गई। ये देखो जी समेत जी बहुत ही अच्छा गाना गीत जो लिखा है हमारे साथी था गौतम जी के पिताजी थे गौतम रत्तू जी के। अच्छा। हाँ उसने बहुत सारे गीत लिखे हैं ये किताब है उसकी गीतों की उस पर रत्तू के रतन उसके बहुत से गीत हैं। हम इसने हमारे जो महापुरुष हुए हैं सभी पर कुछ न कुछ लिखा है। बाबा साहब पर आपको बताएं कि 72-73 में 8 गाने रिकॉर्ड किए हैं बाबा साहब पर धन बीमा धन के। तो बहुत देन है। तो रत्तू साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम है। तो अगले हफ्ते 15 मार्च ਨੂੰ ਮਾਨੇਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो अगले संडे ਅਸੀਂ प्रोग्राम ਕਰਨ ਦਾ पूरा कोशिश करांगे मानवर कांशी राम जी बारे। तो वो भी देखना नहीं भूलना। तो जिस तरह अपना गल करते सी कि वर्ल्ड बुद्धिस्ट जो वूमेन डे सी उसकी आप सब नूं बहुत बहुत बधाई है और नारी शक्ति नूं बहुत बहुत प्रणाम है। सुमेश जी उस बार आने से पहले आप बताएं अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों के आप कहाँ से आए हैं और आप इंग्लैंड कब आए और किस लिए आए यहाँ। तो सबसे पहले सबको वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर रेखा जी को अपने कमेटी मेंबर को। जी जी काफ़ी अच्छा उन्होंने अचीवमेंट किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम किया है बुद्धिस्ट कम्युनिटी में। तो मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, काफ़ी छोटे शहर से आता हूँ, नांदेड़ से।
नंदेड़ से आए हैं। नांदेड़ से जी। आपको अगर पता होगा वहाँ पे हाँ हाँ एक सुना है गुरुद्वारा कि पंजाबियों famous है। का बहुत जी, बड़ा जी, गुरुद्वारा जी। है। हाँ हाँ तो नंदेड़ मैं में। वहीं से हूँ और मैं मेरे फैमिली मेंबर पंजाबियों का नहीं है वो, सिखों का बहुत बड़ा हाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। जी, हाँ, ऐतिहासिक। और मेरे फैमिली में मैं फर्स्ट ही पर्सन हूँ जो मैं अब्रॉड आया हूँ और ठीक मैं है। यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। ठीक है ठीक तो है। मैंने मास्टर्स की है यहाँ पे, और मैंने इंजीनियरिंग की थी मुंबई में। ठीक है। तो मैं अलग अलग जगह पे पढ़ा हूँ और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ और अभी लगभग 4 साल हो गए हैं मैं 4 यहाँ साल पे। हो गए जी जॉब करते को। जी ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और हमारे को तो बहुत खुशी है कि आप जैसे जंग लोग यहाँ बुद्ध विहार से जुड़ रहे हैं और इतने आप पढ़े लिखे भी हैं। तो मुझे हमारा हौसला बढ़ रहा है कि आप हमें साथ भी देंगे। और महाराष्ट्र धरती जो बाबा साहब की कर्म भूमि है ना, जी। तो वहाँ तो बहुत बहुत अच्छा है। तो सुमेश जी आप ये बताएं कि बाबा साहब के मिश्र के कैसे प्रभावित हुए आप? तो मुझे लगता है अंबेडकर ये एक विचारधारा है, विचारधारा है। ये ना कि कोई आंदोलन है, ना ही किसी से जंग है। हाँ। ये एक विचारधारा है और जिसने अंबेडकर को पढ़ लिया, जिसने अंबेडकर को समझ लिया, जी जी, वो ये विचारधारा से जुड़े बगैर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। मैं सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा का शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे अंबेडकर और बुद्धा से मिलवाया है। हाँ। उन्होंने उनके बचपन से काफ़ी कुछ सहा है बिकॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जी जी। ये भेदभाव, जैसा कि मैंने बताया मैं काफ़ी छोटे शहर से हूँ। मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा कि पापा ने सुनाया था वो स्टोरी कि जी। जब वो बचपन में जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, जी जी, तो उन्हें कैसे एक अलग से बिठाया जाता था और बाकी लोगों को अलग से बिठाया जाता है। मेरे पास उनके अभी भी एक टीसी है जिस पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि महार, पापा के नाम के सामने उन्होंने महार लिखा हुआ है। अच्छा जी। तो वो एक मुझे इंस्पिरेशन देती है कि बाबा साहब को ये विचारधारा को आगे बढ़ाए और अभी भी 21st सेंचुरी में ये स्टिल छोटे छोटे शहरों में हो गया, गाँव में हो गया, ये अभी भी चल रहा है। कास्ट सिस्टम अभी भी जारी है। अभी भी जारी है। वो लोगों को दिमाग से नहीं निकल रहा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन। हाँ। जी, ये पापा के साथ ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया ही है। मैंने भी खुद ने एक्सपीरियंस किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जी जी। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जी, मैं नागपुर में मैंने 11th-12th मेरी कंप्लीट की। ठीक है। तो मैंने कुछ ब्रेक टाइम था शायद, टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए गया था मैं फॉर्म के बारे में। तो टीचर ने मेरी तरफ सस्पिशियसली देखा और मेरे से पहले मेरा सरनेम पूछा। वो फॉर्म के बारे में तो कुछ बताया नहीं और मेरे सरनेम पूछने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया कास्ट के बारे में कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसे करते हो, वैसे करते हो। अच्छा। जहाँ पे बाबा साहब ने दीक्षा दी, हम गए आपकी यादगार के लिए, हम गए हैं। हाँ। 2 बार जाए हैं दीक्षा भूमि में। तो बाबा साहब ने नागपुर ही क्यों चुना? क्योंकि वहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है। हाँ। तो उनकी विचारधारा सीधा आरएसएस को चैलेंज करती है। और वहाँ पे अभी भी, ये 2011-12 की बात होगी, हाँ। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि ये सब चीज़ों को मानते हैं। तब ये सब काफ़ी कुछ प्रभाव हुआ। फिर बाद में कोविड में बाबा साहब को, बुद्धा को, इन सबको काफ़ी अच्छे से पढ़ने को मिला। मैंने काफ़ी कुछ किताबें पढ़ी इनके बारे में, बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वेयर द शूद्रास। अच्छा जी। तो तब पता चला कि हम एक्चुअल में कौन थे और हम कहाँ से आते हैं। हाँ, हम भी ऐसा ही है। हम भी जो बाबा साहब की किताबें पढ़ कर ही हम मिशन में आए थे। हाँ जी। और बाबा साहब का एक काफ़ी अच्छा कोट है जी। वो बोलते हैं, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज, बी एजिटेटेड। हाँ जी, हाँ ठीक है। सीखो मतलब पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि ये विचारधारा को ही आगे बढ़ाना उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है आप आए हैं हमारे साथ। तो हम मिलकर उनका जो उसके मिशन का प्रचार करेंगे। एक लाइव कॉल आया है तो हम जे ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करते हैं। हेलो जी, हेलो जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं जी? मैं प्रकाश
प्रकाश बोल रहे हैं जी। हाँ जी, नमो बुद्धा, जय भीम जी, आपका वेलकम है लोटस टीवी के स्टूडियो च आया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ जी आप की कहना चाहते हैं जी? हाँ जी, नमो बुद्धा जय भीम जी, आपका वेलकम है लोटस टीवी के स्टूडियो से आया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आप की कहना चाहते हैं जी? आप पिछला बहुत साल सब तो पहले था मैं सावित्री बाई फूले हुआ हूँ और श्री संतराम हुआ, बहुत बहुत साडा परिवार महाराज चलो बहुत बहुत श्रद्धा। महाराज टीवी की आवाज अपनी थोड़ी बंद कर लो। अच्छा जी टीवी की आवाज बंद कर लो। हाँ जी हाँ जी, बोलो हुण बोलो। हाँ जी सावित्री बाई फूले होना दे बारे ते अपने श्री संतराम होना बारे मैं बहुत बहुत अपने गुरबाल को बहुत बहुत श्रद्धांजलि पेश करदा जी ते श्री संतराम होनी तो मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत फ्रेंड थे। सही गल है जी, सही गल है जी। हाँ जी, मैं सब तो पहले ही वो दिल्ली जॉब करते थे, गए थे पहले से। अच्छा जी ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ जी। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ। हाँ उर्दू पढ़े सी। हाँ जी, सही गल है ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ 55 ਦੇ ਵਾਲੇ हाँ जी, हाँ जी ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, जी। ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ अच्छा जी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਏ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੁਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ हाँ जी, हाँ ਇੱਥੇ जी ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी, ਔਰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, हाँ जी, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਦੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੀ। हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ हाँ जी। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀਗਾ। अच्छा जी, ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। हाँ जी, हाँ जी। ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ जी जी ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। जी जी। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੋਂ ਆਏ? 55 ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ 63 ਤੋਂ ਆਇਆ। 63 ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੰਡਨ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਤਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਐਵਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੀ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੜ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰਵਨ ਅਮਦਾਸ ਹੋਣੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਸੀ, ਮਾਸੜ ਸੀਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬੁਰਹੰਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋ ਜੀ। ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 56 ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਏ
ਜੀ ਜੀ ਛੱਬੀ ਹਰੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੋਕ ਯਾਤਰਾ, ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਫਦਰਜੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ प्रणाम है जी। प्रकाश शाहपुरी इनका नाम है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्होंने बाबा साहब को देखा हुआ है। सुमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला कि मैं आपने बाबा साहब के बारे में पढ़ा, तथागत बुद्ध के बुद्ध हैं धम्मा बारे में पढ़ा। जो अपनी बात चल रही थी कि वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे बारे में, तो तथागत भगवान बुद्ध ने महिलाओं के बारे क्या किया, आपने जो पढ़ा है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो सबसे पहले तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में भगवान बुद्ध ही पहले थे जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जी कुछ किया है हाँ जी। जिन्होंने वुमेन को इक्वली अधिकार दिया है, आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो जी या सोसाइटी में समान अधिकार हो। जी उससे पहले भारत में कहीं पे भी वुमेन को इक्वल नहीं माना जाता। इक्वल नहीं माना जाता है। हाँ, वो तो ग्रंथों में लिखा है जी। ढोर गवार शूद्र और नारी सारे तारण के अधिकारी हैं जी। महिलाओं को मतलब जो कर्मकांड है, ये रीति रिवाज है, उनके नीचे दबाया जाता था, हाँ जी। पर बुद्धों ने उन्हें समान अधिकार दिया। वो चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, उन्हें धम्मा के प्रचार करने का समान अधिकार था। हाँ जी, हाँ जी। उन्हें भिक्खुनी संघ भी बनाया मैनेज करने का पहले, आज से 2500 साल पहले 2500 साल पहले की ये हम जी। और मुझे लगता है उनके जीवन में काफी कुछ महिलाओं ने प्रभावित किया। हाँ, कौन कौन सी आपको याद है महिलाएं, कोई जी याद तो है? पहले तो मुझे लगता है कि महामाया जी, उनकी जो माता थी हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो उन्होंने उनको जन्म दिया, वो तुरंत ही गुजर गई कुछ दिनों बाद। काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सके बुद्धा के साथ। पर बाद में जो उनके जीवन में जो महिला आई, महाप्रजापति गौतमी, तो उनका बुद्धा के जीवन पे काफ़ी गहरा पालन पोषण, जैसा कि अपन बोलते हैं बचपन में ही बच्चों को जितना पढ़ाते हैं, जितना सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, उससे उसका फ्यूचर डिसाइड। पहले टीचर तो माँ ही होती है, माँ बाप ही होते हैं। तो वो सब किया महाप्रजापति गौतमी ने, जो कि बुद्धा की एक मौसी भी थी, महामाया की बहन थी। हाँ जी, हाँ जी। और इनका एक महत्व क्यों है हिस्ट्री में, क्योंकि ये भारत की पहली नन है, पहली भिक्खुनी है। अच्छा जी। इससे पहले कहीं पे भी धर्म में औरत को भिक्खुनी नहीं माना था, नन नहीं माना अभी तक था। नहीं। लोगों ने कई की जो संस्थाएं हैं कभी कहीं भी नहीं अपोज करते हैं महिलाओं को। और बुद्ध ने उस समय पे इनको पहला अपना भिक्खुनी माना। इनके जिद को देखकर इनके साथ और 100 महिलाएं शामिल थी जी। और इन्होंने सिर्फ भिक्खुनी संगल में शामिल ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक श्रोतापन्ना, जो इनलाइटेंड 4 स्टेप ऑफ इनलाइटमेंट होते हैं, अच्छा जी, उसके पहले इन्होंने अचीव कर लिया था गौतमी ने। बहुत अच्छी बात। तो मुझे लगता है कि ये जो पहला कदम था, एक ऐतिहासिक कदम था। हाँ। और ये रीति रिवाज के अंदर और ये भी आता है तथागत बुद्ध के सुजाता एनलाइटमेंट होने से पहले सुजाता ने उसको खीर दिया, वो भी महिला थी ना। सुजाता हो गई, विशाखा हो गई, विशाखा हो गई। हाँ, फिर बहुत सारी महिलाएं उनके जीवन में हुई। सुजाता का एक किस्सा सुनाऊं तो तब जब भगवान बुद्ध काफी कमजोर हो गए थे मेडिटेशन करके, तो उनको कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या करे। तब सुजाता ने एक खीर ऑफर की, राइस पुडिंग ऑफर की। तब उनको
उनकी आगे ताकत की मिली ताकत उसको। मिली हाँ, आगे हाँ। की इनलाइटमेंट जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। हाँ। और तब उन्होंने मध्यांग मार्ग अपनाया अपनाया। हाँ। और तब उनको इनलाइटमेंट मिली। हाँ, तो मर्द को क्या है कामयाब करने के लिए औरत बहुत जरूरी है। जी, औरत जी। के बिना कोई भी मर्द कामयाब नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ जहाँ अपने टेलीफोन आए हैं, ओके। अपने जे भी आप अटेंड कर लें, तो उसके बाद आगे आप प्रोग्राम चलता है। जी। सत्या भाटिया जी, जो कि हमने बुद्ध गया के लिए अपील की है, उसके बारे में वो 40 पाउंड 40 पाउंड दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आप सबको भी अपील करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और वो एक जुल्म भी है, जो कि इतनी देर से दूसरे अपने धर्म वालों ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो वो हटना चाहिए ना। तो यहाँ एक बात भी मैं कह देना चाहता हूँ कि 30 मार्च को जहाँ कुछ संस्थाएं ने, कि इसमें सभी है, श्रीलंकन है, थाई भी है, और भी जितनी भी संस्थाएं जहाँ है, दूसरे कंट्री के भी, इंडिया के भी, वहाँ एक बहुत बड़ा लंदन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। उसमें आप ज़रूर, जिसके पास वक्त हो तो ज़रूर जाना। तो हम भी कमेटी की ओर से हम भी कोशिश करेंगे जाने के लिए। तो ये एक आपको बेनती है। इसके बाद सांपला जी, सोलह सांपला जी जो जर्मन से फ़ोन कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि रेखा जी को जो अवार्ड मिला है उसको ही नहीं मिला, वो सभी जो हमको मिला है, तो वो बधाई दे रहे हैं। थैंक यू अपने सांपला साहब। मिंदो रत्तू नीश और परिया ऋतु रेखा जी को बधाई दे रहे हैं। फकीर चंद चौहान, गुरदेवो चौहान संत राम जी ਨੂੰ श्रद्धांजलियाँ दे रहे हैं और रेखा पॉल जी ਨੂੰ बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रकाश ममन जी संत राम जी ਨੂੰ श्रद्धांजलियाँ दे रहे हैं, रेखा पॉल जी ਨੂੰ बधाइयाँ दे रहे हैं। मनोहर लाल गिंडा जी श्रद्धांजलियाँ संत राम जी ਨੂੰ दे रहे हैं और रेखा जी ਨੂੰ बधाइयाँ दे रहे हैं। सोडी राम जस्सल कमलेश जस्सल जी संत राम जी ਨੂੰ श्रद्धांजलि और रेखा जी ਨੂੰ बधाई दे रहे हैं। मदन लाल चौहान ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो उस विच बहुत सारे लोगों ने आके जिन्ने भी उन्होंने रिश्तेदार सी, यार दोस्त सी, उन्होंने आके श्रद्धांजलियाँ दित्तियाँ। लंदन से श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत जी भी आए हुए सी और डॉक्टर गर्दी साहब भी आए हुए सी, बहुत सारे लोगों ने आके श्रद्धांजलि दी। पंते पूजे कस्बा जी बर्मिंघम तो आए हुए सन, उन्होंने आशीर्वाद दिता। थैंक यू जी। तो इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साढ़े वालों भी डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी और लोटस टीवी की सारी टीम वालों भी असी श्रद्धांजलि देंगे हैं, श्रद्धा के फुल उन्होंने पेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये साडा हौसला बढ़ता, सानू पता लगता कि लोग सुन रहे हैं आपको, जर्मन तक आपको सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जे मध्यकाल में जो समेत जी महात्मा ज्योतिराव फूले जी हुए हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या किया है? तो जो मध्यकाल था, जो 1900 का शतक था, हाँ जी, हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया कि बुद्धा ने जो पहला कदम उठाया हिस्टोरिक इक्वालिटी की तरफ, हाँ जी, हाँ जी, तो महात्मा फुले ने वो अप्लाई करने का कोशिश किया। जी जी। वो एक काफ़ी विजनरी सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर, जी जी, और वो एक एडवोकेट थे वुमेन के उस टाइम के। तो उन्होंने ना सिर्फ अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ा, आवाज उठाई है, बल्कि उन्होंने एट द सेम टाइम एजुकेशन टुवर्ड्स वुमेन्स एजुकेशन की तरफ भी काफ़ी उन्होंने, उनका कल था। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका जो की कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, उन्होंने पहली इंडिया में महिला स्कूल स्थापित की। हाँ जी, और हाँ। उनका 1848 में पहला स्कूल स्थापित किया ना, 1848 पुणे में। हाँ, तात्या साहेब भिड़े रेसिडेंस में उन्होंने स्थापित किया था 1848 में।
और उसकी पहली महिला टीचर बनी सावित्रीबाई फुले। फूले जी, हाँ हाँ उनको पहले उन्होंने पढ़ाया, मतलब हाँ। सावित्रीबाई फुले ने जी, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, तभी ये मिशन उनका उनका गोल उनका विजन अचीव हो पाया। अच्छा। एक किताब में पढ़ा था मैंने कि वो साथ में 2 साड़ी 2 लेके चलती थी, हाँ हाँ। क्योंकि जब पढ़ाने जाती थी स्कूल में तो लोग इतना अपोज करते थे, हाँ, हाँ, फेंक के मारते थे, हाँ, गंद डलवाते थे या गंद गंदी कर डालते देते थे उसकी साड़ी को। हाँ, तभी भी वो एक साड़ी उसने हौसला नहीं छोड़ा, साथ नहीं, दिया। ठीक है, ठीक है। और वो समाज में एक नई चेतना पैदा नई की चेतना, कि हाँ, हाँ। वुमेन्स एजुकेशन हो सकता है और महिलाओं को शिक्षित का अवसर दिया जा उसको सकता है। साथ एक मुस्लिम लेडी थी, उसका जी जी जी, फातिमा शेख। हाँ, फातिमा जी, हाँ जी, हाँ। उनका नाम फातिमा शेख था। तो हाँ। उन्होंने ही जब खुद के घर वालों ने, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया जी। ज्योतिराव फुले का, तो फातिमा शेख हाँ, और उनके फैमिली ने उनको सपोर्ट किया हाँ। कि जिन्होंने करना है हाँ। उन्होंने काम करना ही करना है। हाँ जी, जी। ये उसके घर वालों ने भी उसको बाहर निकाल दिया था। जी, जी। उसके महात्मा फुले राव के जो बालदान थे ना, जो उसके पिताजी। फादर थे, जी। तो जैसे वो, अच्छा, तो उसने वो जो स्कूल बनवाए हैं पहले और टीचर बनाई है, तो जो ये महात्मा ज्योतिराव फुले जी को भी बार बार प्रणाम है, कोटि-कोटि और प्रणाम सावित्रीबाई उनको, फुले जी को भी सावित्रीबाई फुले। प्रणाम है, जी, जो जी, कल को उसकी अपनी उसका परिनिर्वाण दिवस आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो उसमें जी अपना टाइम तो काफ़ी हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने महिलाओं के बारे में क्या किया, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। तो जैसे ज्योतिराव फुले ने फाउंडेशन क्रिएट किए ले हाँ, हाँ, हाँ। 1900-1800 में, हाँ तो 1900 बाबा साहब के पीरियड में उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया, मैं जी, ये जी। बोल सकता हूँ। जी जी क्योंकि जो ज्योतिराव फुले ने जो विजन देखा था जी, वो बाबा साहब ने एग्जीक्यूट किया है कंप्लीटली और एकदम लीगली। हाँ हाँ जब वो समाज सुधाकर थे ही, संविधान के शिल्पकार है ही वो, जी जी पर जब वो लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा ये पास किया था बिल, हिंदू कोड बिल जैसे हिंदी बोलते कोड हैं, बिल, हाँ हाँ जिसकी वजह से ना ही दलित महिलाओं को न्याय मिला, अधिकार मिला, इक्वलिटी मिली, बल्कि भारत की पूरी महिलाओं को उनसे फ़ायदा हुआ। जी जी वो प्रॉपर्टी में अधिकार हो गया, समान अधिकार। उससे पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, जी जी महिलाओं को डिवोर्स के लिए अधिकार नहीं था, जी वो बाबा साहब ने दिलवाया। जी जी फिर एडॉप्शन का उन्होंने एडॉप्शन का भी उन्होंने वो हिंदू कोड बिल में ऐड किया था। जी जी फिर उन्होंने एज पॉलिसी लाई कि महिलाओं के लिए इतना 18 ईयर और मेल के लिए 21 ईयर मैरिड लाइफ। अच्छा, मैरिड लाइफ का जो जी। बनाया गया। जी, और ये सारी चीज़ें उन्होंने ये भी मैं पढ़ा है, जो प्रेगनेंसी में उसको छुट्टियां के बारे में बाबा साहब ने उसको लड़े थे और हक लेके दिए। अभी के फिलहाल में जो वर्किंग आवर्स है हाँ और जो प्रेगनेंसी लीव मिलती है इंडिया में महिलाओं को, हाँ, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से बाबा मिलती से है। मिले हैं। उससे पहले ना ही तो ऐसा कुछ कानून वोट था, भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। महिलाओं को इतनी सुविधाएं थी ही नहीं, महिलाओं को इक्वल ट्रीट किया ही नहीं जाता था। हाँ, और इसे ये बिल पास करते हुए बाबा साहब ने कम मुश्किलें फेस नहीं की है, जी जी चाहे वो राजनीतिक हो, सोशली हो। जी जी तभी भी बाबा साहब ने एक कोट कहा था, जी मैं समाज को बदलने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मुझे अकेला ही लड़ना पड़े। क्यों ना हमें अकेला ही लड़ना क्यों ना पड़े। मैं अकेला ही लड़ना पड़े। तो उनका जो एकाग्रता था समाज को चेंज करने के लिए, जो उनका विजन था, उनको काफ़ी साथ मिला जो उनकी जीवन में महिलाएं थी। जी जी उनकी माता हो गई जी जी भीमाबाई, उनकी पत्नी हो गई जी जी रमाबाई। जी जी तो रमाबाई के बारे में अगर बोलना चाहूँ मैं, तो उनका बहुत त्याग किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा त्याग बहुत किया, त्याग मतलब किया। उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना जी, जी। उन्होंने त्याग किया। ये जब
वो 15 साल के थे बाबा साहब और रमाबाई 8 साल की थे, तब उनका शादी हो गया था। शादी क्योंकि हो पहले गया। के ज़माने में तो ऐसा ही ऐसे होता था कि होता था, हाँ पंजाब में भी ऐसा ही था। जी। हाँ, और वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पिलर थी उनके जो हाँ, हाँ। मिशन का, उनके जो विजन था, उनका गोल था, हाँ उसके जी। लिए हर कदम पे उन्होंने उनका साथ दिया, उनको प्रोत्साहन दिया। जी जी जब वो यूएस में पढ़ने के लिए गए थे, तब दोनों तरफ फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जी जी रमाबाई यहाँ पे घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी। जी उनके बच्चे गुजर गए, 6 में से सिर्फ एक ही सर्वाइव किया। जी जी तभी भी उन्होंने वो हौसला नहीं तोड़ा जी, बाबा जी। साहब का। जी तभी भी वो एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही खड़ी उनके रही, साथ हाँ और जी। उनको प्रोत्साहन दिया। जी जी जब वो यूएस में थे, तब उन्होंने ज़रा भी जिक्र नहीं किया कि मैं यहाँ पे कैसी हूँ या मैं इस हाँ, स्थिति से गुजर रही हूँ। हाँ, तंगी कितनी भी नहीं, तंगी थी उसने कितनी भी बताया नहीं। उन्होंने बताया नहीं। हम्म। उन्होंने स्वतः कष्ट किया, जी खुद से कष्ट किया। उन्होंने उनको फोकस करने के लिए बोला उनके स्टडीज़ पे, उनके गोल जी, पे। जी, और जी। उनकी वजह से ही, उनके त्याग की वजह से ही मुझे लगता है कि हम आज यहाँ पे बैठ के बोल सकते हैं फ्रीली। तो बहुत अच्छी बात है जी। समेत जी। तो मैं एक बार फिर अपने अनाउंसमेंट जो कमेटी दिया हैं जी कि जो 14 मार्च को जो डॉक्टर अम्बेडकर रिसोर्स सेंटर पंजाब विच जो क्लासरूम डॉक्टर चमन जी की याद में उद्घाटन किया जा रहा है। जो भी वहाँ गए हुए हैं पंजाब में, तो ज़रूर वहाँ पहुँचने की कोशिश करना। ये नाल जो कि 29 मार्च को जो लेडीज़ सोशल इवनिंग रखी गई है, ये स्पेशली के इस करके रखी गई है कि जो हमारे रेखा पॉल जी प्रधान जी है ना, उनको जो वुमेन अवार्ड मिला है, तो इस खुशी में ये उसकी रखी गई है। तो ज़रूर साथ देना इस पर। तो 20 अप्रैल को जो बाबा साहब का जो अपना बाबा साहब का जन्मदिन है, वो अपना धूमधाम से मनाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बात तो हमारे टेलीफोन से हमें खत आया था, चमन चाल जी हमारे साथी थे। मैंने गुरदास राम आलम की एक कविता पढ़ी थी आज़ादी की, तो उन्होंने बहुत पसंद किया था। तो उन्होंने बोला है कि वो हम उसके घर भी गए थे लोक कवि गुरदास राम आलम जी। तो कोई 75-76 की बात है। तो वो बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा है। तो ये कि आपने ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो लेटर आते हैं, जो टेलीफोन आते हैं, ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि आप ये लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ये नाल ही और भी आए हैं जो बलदेव बिरदी जी संत राम जी ने श्रद्धांजलि और रेखा पॉल जी को बधाई दे रहे हैं। मदन सरोय जी लंदन तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और रेखा पॉल जी ने बधाई दे रहे हैं। जसवीर करड़े परिवार जी डैडी जी ਨੂੰ सारा परिवार याद कर रहा है और धन्यवाद करता है लोटस टीवी सारी टीम का कि उन्होंने अज का खास प्रोग्राम जो संत राम जी ਨੂੰ डेडिकेट किया है और रेखा जी ਨੂੰ बधाई भी दे रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ਅਸੀਂ बेनती करते हैं और अपील करते हैं आप सब ਨੂੰ कि देखो ये जो लोटस टीवी है, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਧੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਹਮੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। हाले साढ़े को कोई बुद्ध विहार भी नहीं था। हम चर्च का हाल लेकर वहाँ हम एक धम संडे धम क्लास लगाते थे। तो उस वक्त हम तो जांगी थे, तो उस वक्त ये संतराम जी हमें सिखाया करते थे धम की बात। हाँ, तो जसवीर करड़े जी का और यही बात आप सबको मैं बेनती करना चाहता, अपील करना चाहता हाँ कि आप भी जो प्रोग्राम की सेवा लिया करो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है बिना तुहाडी मदद तो ये असी कर नहीं सकते। अगर जे चाहते हो कि धर्म प्रचार चलता रहे और ये जो अपना चल रहा है आंदोलन, उसके बारे में भी आप अगर मदद करना चाहते हो तो हम भेज रहे हैं
उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अपना समा बहुत जल्दी जा रहा है। जो एक क्वेश्चन आपको करना है कि जो अपने महाबोधि विहार पर जो आंदोलन चल रहा है बुद्ध गया में समेत जी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये जो बाकी के जो धर्म स्थान है उन लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये महाबोधि विहार ही जो है ये इसमें दूसरे लोग बाड़े हुए हैं, दूसरे यकीन के उनके पास बहुत सारे अपने मंदिर है, अपने स्थान है, वो करे जो करना है। इसके बारे में क्यों है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? तो ये जो महाबुद्धि बोधि मुक्ति आंदोलन है, हाँ जी, ये 12 फरवरी से चल रहा है। तो 26 दिन हो गए आज है? आज 26 दिन हो गए। तभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ उनको नोटिस नहीं कर रही है, कहीं पे ये छपा नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो चल रहा है ये एकदम सही चल रहा है। जी जी। ये जो बिहार गवर्नमेंट में 1949 में एक्ट बनाया था जी जी कि कमिटी में 9 मेंबर होने चाहिए और 5 जो है अदर कास्ट, हिंदू, ब्राह्मण और 4 बुद्धिस्ट। जी जी। और 5 में से भी एक उनका अध्यक्ष, तो बहुमत तो उनको ही जाएगा। जी जी। हाँ हाँ। तो ये हमारे पूरे अंडर कंट्रोल में नहीं है। आप कहीं पे भी देख लो, आप चर्च में देख लो, वहाँ पे मुसलमान नहीं रहते। सही बात है। आप सिखों के गुरुद्वारा में देख लो, वहाँ पे दूसरे लोग नहीं रहते। आप मंदिर में देख लो, वहाँ पे बुद्धिस्ट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है ये अनजस्टिस है, ये अनजस्टिस है, ये अन्याय है बुद्धिस्टों के खिलाफ। और महाबोधि महाविहार ये एक पवित्र स्थान है बुद्धिस्ट के लिए, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे सारे वर्ल्ड के लिए। और ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए एक चेतावनी है कि आप जहाँ पे भी हो, आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आप सपोर्ट करो महाबोधि विहार के लिए। आप प्रोटेस्ट में शामिल हो। अभी जैसे हम लोग लंदन में कर रहे हैं 30 को। तो सबको अपील है कि आप सब शामिल हो। इट इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट, बट इट शुड टेल आवर गवर्नमेंट दैट इट इज़ गेटिंग नोटिस्ड एंड यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। यू हैव टू एक्ट क्विकली। और मैं बोलना चाहूँगा, ये कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी नहीं तो भैया कभी नहीं होगा। हाँ हाँ। जो वहाँ पुलिस ने उसको वहाँ कुछ लोगों को उसके बारे में तंग भी किया है, उठा कर ले गए, ऐसा भी कुछ हुआ है वहाँ जी। तो पिछले 3-4 दिनों में रात के समय में भिक्खु लोग जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जी जी, बिहार गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ से हटा दिया। उन्हें जबरदस्ती उठा के हटा दिया है। जी जी। तो अभी लोगों को ये सब दिख रहा है। अभी मुझे लगता है कि वो जो आग है वो पेटी हुई है और ये आग रुकेगी नहीं जब तक हम लोग एकजुट होके ये दिखाएंगे कि हमें फर्क पड़ता है और हम सब एक साथ में हैं। तो हमें संघर्ष अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना? अमेरिका में हो रहे हैं, लंदन में होंगे, हम यूएनओ में भी जाने वाले हैं लोग। हाँ, वहाँ पे भी हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में। तो हर जगह से ये प्रोटेस्ट के लिए साथ है। अरे महाराष्ट्र में भी कोई प्रोटेस्ट हुआ है इसके लिए? नागपुर में हुआ है प्रोटेस्ट। अच्छा जी। जहाँ पे बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यूस चल रहा है। लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं। पुणे में हुआ है। तो हर जगह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बस जलंधर में भी हुआ है, पंजाब में। जी जी। जलंधर और फगवाड़ा में और फ्लोर में जहाँ वहाँ भी हो रहे हैं। बहुत बड़े नहीं पर छोटे छोटे जो हो रहे हैं और वो दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं कि उसको याद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सुरेश मानेवर जी भी देख रहे हैं और आपका वेलकम कर रहे हैं आपको कि आपने बहुत अच्छी तरह आपने बातचीत की है। तो आखिर में आपके पास 1 मिनट है, कुछ कहना चाहेंगे आपको जो लोटस टीवी के बारे में और जो है अपने बुद्ध गया के प्रोटेस्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
तो मुझे लगता है ये एक मौका दिया है हमारे इन्वायरमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने, कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी को एक साथ आने के लिए जो बाबा साहब ने कारवान उनका यहाँ तक लाके खड़ा किया है, हमें ये पोजीशन पे रखा है जी जी कि हम कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए, अभी हमें और नीचे नहीं जाना है। हाँ हाँ तो उसके लिए हमें एक साथ होके संघर्ष करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ जी, उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रास्ता है। नहीं है। जितना भी बाबा साहब ने बोला है वो सब कुछ सच होते जा रहा है, हाँ चाहे वो डेमोक्रेसी के बारे में हो, चाहे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो, वो सब कुछ सच होते जा रहा है। हाँ हाँ और उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। हाँ हाँ हिंदुइज्म पूरे टेक ओवर कर रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारा टाइम होने लगा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर भी हम बहुत अच्छा लगा है कि आप आज पहली बार इतनी आपको नॉलेज है। हम आप फिर भी आएँ और हमारा साथ दीजिए। तो जिस तरह सुमेश जी ने बोला है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सारी दुनिया में ये आवाज़ उठ पड़ी है और सारी दुनिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ज़रूर ये प्रोटेस्ट जो यहाँ 30 तारीख को यूके में भी हो रहा है उसके आप साथ देने की कोशिश करना। कमेटी की ओर से भी हम आपको बेनती करते हैं कि हम भी कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। तो प्रोग्राम आपने पसंद किया, जिन्होंने टेलीफोन किए है, और कनाडा फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम समाप्त है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत जी।